Minister for Drinking Water and Sanitation would give the welcome remarks at the conference. There would be a Swachh Bharat Mission movie which will be released by the Prime Minister. Also, the Urban Development Minister Venkaiah Naidu will give a speech. The Prime Minister, as we told you, will distribute Swachhta awards to 11 cities, and the Prime Minister will address the gathering. Swachh Bharat commitment will also be signed today at this conference. So it's a busy day ahead, a day-long India Sanitation Conference being organized in the national capital. सिर्फ मंदिर नहीं, अपना गांव भी मंदिर बने, स्वच्छता रखें, उनको एजुकेट कर लें जी वहाँ, यानी हर इस प्रकार के स्थानों पे ऐसा हम शब्द उनके अनुकूल हो जी, रेगुलर उसकी परंपरा में जो कहीं निकलती बात शोध करके उल्टा वाक्य रखा जाए जी। मान लिए स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में कुछ ऐसी चीज निकले और वो लिख करके रखे जाए, उनको कहा जाए पर्चा बनाओ, लोगों को बातों में प्रसाद के साथ रखो। हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा कि एक जगह ऐसी है जहाँ आने वाले व्यक्ति तो आते ही मैसेज लेके जा सकते। श्रद्धा से ये आपका आइडिया है? पर्यटक तो बाकी नवंबर हो जाएगा सर। ये तो काम 3 महीना का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है सर। ऑन लोकेशन सर अभी आसाम में लॉन्च हुआ सर, मुख्यमंत्री जी ने काफी हम लोगों को साथ में रहे उसका, और जाकर ऑन लोकेशन लॉन्च हुआ, सब सर लगे हुए हैं। हमारे लगता है कि 3 महीने में परिणाम। Namaskar sir, my name is Anand Balagopalan. I am Joint Secretary in the Urban Development Ministry. In this wall we are talking about the various steps taken by the ministries for building capacity for various stakeholders. So here sir, we have introduced online e-learning platform wherein about 25 questions are given to them at the end of this training program, and once they are able to answer all those questions, a certificate is also given like this, a certificate for their participation. And we have developed about 26 case studies. This is about Surat Municipal Corporation. An exhibition being organized at Vigyan Bhavan, the Prime Minister being apprised of the initiatives, the participants there informing the Prime Minister of the initiatives which have been put forth to ensure the success of Swachhta mission, which was launched by Prime Minister 2 years ago. India Sanitation Conference, a day-long conference, is being organized at Vigyan Bhavan. This is being organized by the Ministry of Water, Drinking Water and Sanitation, and also Urban Development Ministry. On a regular basis, we have also been showing you reports which talk of how Swachhta mission is gaining popularity. People are becoming aware of the need for cleanliness and clean surroundings, and how common man organizations, institutes are joining together to ensure their part of the country is clean. During the day-long conference, that is the India Sanitation Conference today, various issues of best sanitation practices, Swachh technologies, financing the mission, Swachh Bharat mission, inclusive sanitation, also cleanliness at 100 iconic places, solid and liquid waste management, all this would be discussed. Swachhta Week was already started on 25th of September. Representatives from 677 districts, also commissioners from 500 Amrut cities, NGOs, private sectors, the stakeholders today attending the conference. The Prime Minister will be signing a Swachh Bharat commitment today at the conference. He will also distribute
Swachhta Awards to 11 cities who have ensured the Prime Minister arrives at the conference. माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी का, माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। नमस्कार। इंडिया सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस 2016 स्वच्छ भारत सम्मेलन 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ और अब ये जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2016 तक स्वच्छ भारत सप्ताह पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करती हूं कि अपने उद्बोधन द्वारा सम्मेलन के उद्देश्यों से हम सभी को परिचित कराएं। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के स्वच्छता के निमित्त इस आयोजन में हम सबके मध्य विराजमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, राज्य मंत्री शहरी विकास आदरणीय इंद्रजीत सिंह राव साहब, राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता आदरणीय श्री रमेश जी, सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, शहरी विकास और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वर जी, श्री राजीव जी और इस पूरे सम्मेलन में देश भर से शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और अधिकारी वर्ग जो सभी सम्मेलन में आए हैं, मैं पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सबके ध्यान में है कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में स्वच्छता के प्रति सारे देश को आह्वान किया था और आग्रह किया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, तब से लेकर आज तक लगातार स्वच्छता के प्रति आग्रह, स्वच्छता के लिए प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि आज सने सने यह स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्षों में जो काम हुआ, उस काम में राज्य सरकारों का, स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय और बाकी सभी संस्थाओं का जो योगदान है, उसके निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी काम करना और शेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरा भारत स्वच्छ भारत के रूप में तब्दील हो जाए। हमें विश्वास है कि 2 अक्टूबर परसों है। 2 अक्टूबर को 1 लाख गांव देश के पूरी तरह ODF
खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे और आने वाले इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से 40 जिले पूरी तरह ODF हो जाएं, यह हम सब लोगों का प्रयत्न है और सभी का सहयोग इस दृष्टि से मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक दो अनुरोध आप सब लोगों के बीच में जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि घर में शौचालय बनाना यह एक पक्ष है और खुले में शौच की आदत बनना यह दूसरा पक्ष है। गांव में गंदगी को बाहर निकालना, उसके लिए सरकारी प्रयत्न होना यह एक पक्ष है, लेकिन गांव का व्यक्ति गंदगी से दूर रहे या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, यह दूसरा पक्ष है। मैं समझता हूं कि अधोसंरचना विकास की दृष्टि से जो काम करना आवश्यक है, वो काम तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने का प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन और इस पर बल देना यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता भी है और समय की मांग भी है, और व्यक्ति को उस दृष्टि से निर्माण करना यह निश्चित रूप से कठिन कार्य भी है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, मैं अभी जितने स्थानों पर जाता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पश्चात लगातार किसी भी कार्यक्रम में जाओ तो कोई कार्यक्रम स्वच्छता से संबंधित होता ही है और व्यवहार में परिवर्तन आए इस दृष्टि से होता ही है। सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस दृष्टि से बहुत आग्रही हैं। गांव-गांव में अनेक प्रकार की अच्छी प्रैक्टिस की जा रही है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन सब को भी आगे लाने का प्रयत्न है। आज की ये कॉन्फ्रेंस दिन भर चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में जो स्वच्छता के चैंपियन हैं, हम उनको भी सम्मानित करने वाले हैं। जिन राज्यों में अच्छे काम हुए, जिन राज्यों में नई तकनीक का प्रयोग करके स्वच्छता के इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, एग्जीबिशन के माध्यम से वह भी पूरे देश के सामने रखने का प्रयत्न किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारी इस इंडोसैन कॉन्फ्रेंस में हम सभी को उत्साहित करने वाली है और हमारे मुख्यमंत्री गण भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात जो नई गति हमारे स्वच्छता अभियान को मिलेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम उनको स्वच्छ भारत भेंट करेंगे, तो वह स्वप्न निश्चित रूप से पूरा होगा। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं इस अवसर पर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, आज हम ये देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रारंभ से इन 2 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं और हमारी आगे की राह क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को 125 करोड़ देशवासियों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ये गौरव का विषय है। इसी संबंध में प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने कर कमलों से इस फिल्म को लॉन्च करें। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ने देश के हर गांव, हर शहर, हर कोने में एक नई पहल की। सिर्फ देश को बदलने की ही नहीं, बल्कि हर देशवासी की सोच बदलने की। 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। इसीलिए आज इस मिशन का नाम सबने सुना भी है। स्वच्छ भारत मिशन? हाँ सुना है। हाँ जी सुना है। ऑफ कोर्स मैंने सुना है। हाँ भाई सुना है। क्यों नहीं सुना है? सुना है भैया। बिल्कुल सुना है जी। और इस मिशन को समझा भी। इसीलिए 1 साल हो गया, रोज लाइन लगाਉਂਦੇ पर बाहर नहीं जाता। और अगर इस बार ये कोशिश कामयाब हो रही है तो इसीलिए क्योंकि इस बार लोगों ने इस मिशन को अपना बना लिया है। और यही वजह है कि जो गांव और शहर अपनी जमीन को कूड़े और कीचड़ के नीचे खो चुके थे,
आज वो उसे फिर वापस लेने लगे हैं। यही वजह है कि स्कूलों में अलग टॉयलेट बनने लगे हैं और लड़कियां ज्यादा सालों तक पढ़ पा रही हैं। और घरों में टॉयलेट होने से बच्चों और महिलाओं में बीमारियां भी कम हो रही हैं। बाहर जाने में सबसे ज्यादा मुश्किल हमें ही होती है, इसीलिए शौचालय बनवाने के लिए सबसे ज्यादा जिद हमने की है। और इसीलिए आज शौचालय बन भी रहे हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। शहरों में नए और नायाब सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय नजर आ रहे हैं और गांव में लोग अपने घरों में शौचालय बना रहे हैं, जिससे गांव और शहर खुले में शौच से मुक्त हो रहे हैं। गलियां साफ और नालियां पक्की हो रही हैं। शहरों की सफाई नए और ज्यादा प्रभावशाली तरीकों से की जा रही है। पूरा करकट खाद में बदलकर जमीन में जान भर रहा है। पुरानी फेंकी चीजें फिर एक नया बेहतर रूप ले रही हैं। ये बनते इस्तेमाल होते शौचालय और कम होता कूड़ा प्रमाण है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही दिशा में चल रहे हैं। चुनौतियां आगे भी आएंगी, पर पूरे देश को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अब जरूरत है रफ्तार बढ़ाने की। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी के कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को पाने की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। मैं माननीय वेंकैया नायडू जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि आज के इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करें। Respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, my colleague in the cabinet, Sri Narendra Singh Tomar ji, Sri Ramesh Jigjanagi ji, Rao Inderjit Singh ji, Secretaries of Rural Development and Urban Development, Honorable Chief Ministers who has come from different states, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Pondicherry, then Haryana, Goa, and the Deputy Chief Ministers and Ministers who have come from almost all the states of the country. And also the delegates who are participating in this, and including the awardees who have been recognized and who are going to be given awards also today, and the other participants here. My hearty welcome to all of you. Today is an important day because we are completing 2 years after the Honorable Prime Minister has given us this Sankalpa for Swachh Bharat. This is the biggest parliament, I can say, of the People's Parliament conveyed in the country on the issue of realizing Swachh Bharat. I would like to call this assembly of stakeholders as the Great India Sanitation Alliance. It's an India Sanitation Alliance. All of us has come together, irrespective of party, region, religion, caste, creed, sex. We all come together because this is an alliance formed to have Swachh Bharat in India. For the last 2 years, Modi is all about sanitation. Modi means not our Modi ji. Modi means making of developed India. That is the mission for all of us, that we are all moving in that direction. There were some feeble efforts in the past also to make our country clean. But the difference now is the intent, the passion, the people's participation and the progress. When this program was launched, the Honorable Prime Minister told me, Venkaiah ji, this should not be a government program. This should not be a political program. I was wondering what else it could be. Then he told me it should be converted into a Jan Andolan. उन्होंने कहा इसको एक जन आंदोलन का रूप दीजिए, देश में हर एक समाज का वर्ग का लोगों को में जागृत होना चाहिए और सब लोगों का इसमें भागीदारी होना चाहिए, तभी ये अभियान सफल होगा, ऐसा उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है. Taking clue from the Honorable Prime Minister, I have written to all the Chief Ministers, to the governors and also to the district level officials, and then to the religious, spiritual leaders, religious leaders, industry, icons of film industry, as well as sports and other social organizations, urging them to extend their support. I am happy to share with all of you, in the last 2 years,
almost all the important icons in various sectors of the public life, they have come forward in their own way to join this campaign. That's why this program is getting converted into a Jan Andolan. I'm very happy about it. This is the biggest ever mass mobilization in the recent years, I can say. What is most heartening is that women are in the forefront of the movement. If women takes up the movement, it will definitely become successful. That is my experience and that's my confidence. To give a few illustrations, Honorable Prime Minister, Sangeeta Ahwale of Saikade village in Wasim district of Maharashtra has sold her Mangal Sutra to build a toilet. See the example she has set up before the country. 104-year-old Kunwar boy of Kotabari village in Dhamtari district of Chhattisgarh sold her goats to do the same. 20-year-old Priyanka Adivasi of Gopalpur village of Korras block returned to her parents as there is no toilet at her in-laws house and her husband now has promised to build one and take her back home. A Muslim woman in Guntur district of Andhra Pradesh gifted a toilet to her daughter-in-law since she did not want the member of her family suffer the way she did without a toilet all these years. We are reading reports of more and more young women refusing to get married into households without toilets. A school girl in the Koppal district of Karnataka, Lavanya, 14 years old, she went on hunger strike demanding the toilets for all the 80 households in her village. Initially, people took it lightly. Later, they realized, so the entire village came together and all of them has gone for construction of toilets. 80 households in the village, they have toilets also. That's another great example. What more inspiring stories that are needed to know and understand the power of this people's movement for Swachh Bharat. The 21st century, India cannot afford to certain things that include illiteracy and literati. Illiteracy and literati. Literati are the class of people who throw garbage in the open, unmindful of the consequences for themselves and for others as well. This class of people, including both car-owning people who throw out water bottles and banana peel while driving, and the poor who spit in the open after chewing tobacco or something else. Both these sections, they have this habit. A battle on this, against this class of literati is required. Our country can literate only when we are free from this menace of littering in the open. Sanitation literacy is the need of the hour, and behavioral change is the solution for which efforts are on. Swachh Bharat addresses one of the problems of solid waste management, freedom from open defecation, and street cleaning. Under the guidance of the Prime Minister, we have come out with few innovative schemes. One is waste to compost. Cabinet has approved it, and then some subsidies given for that compost. Second is waste to energy. Cabinet has approved it, and some concessional tariff also is given, and mandate also has been given to all these DISCOMs. And the third one is my colleague in the Surface Transport Ministry. He has come out with a new idea of converting the construction and demolition material to reuse it also. All these three new initiatives by this government are going to solve the problem of solid waste in a big way. The other important thing is drainage and sewerage networks and wastewater treatment comes under Amrut. Prime Minister told us before taking up anything in the urban development, first to focus on drinking water. Second, focus on sanitation. Third, focus on solid waste management. Take care of these three things and then move forward. Earlier we were constructing flyovers, we were constructing other things and all. But today the priority is these three important aspects under the guidance of the Prime Minister. A major achievement in the last 2 years has been the Swachh Bharat agenda is now politically mainstreamed. Whatever may be there, unless there is political will and administrative skill, you will not be able to achieve the target. Now I am happy to inform you all the political view, the political will is emerging everywhere. And also the administrative skills and also the interest people's participation, they are all now coming forward. Our chief ministers, our governors, our MLAs, our MPs, our corporators, our mayors, our municipal chairmen, they are all coming together in different places to take care of the cleanliness in their villages, in their towns. Credit for this mainstreaming of sanitation concern goes to our Honorable Prime Minister. He is the person who gave us this direction. He is Prime Minister, is a social mobilizer. Through his Mann Ki Baat, whether it is sanitation, whether it is
our Beti Bachao, Beti Padhao, all this is motivating the people from the front. Taking advantage of that, the various departments of the government, they are moving in the direction of creating the needed awareness as well as participation. Because earlier, people used to think, ये सब सरकार का काम है, ये सब सरकार का काम है, ये सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा. ये मनस्थिति थे लोगों में. वो मनस्थिति में परिवर्तन आया, सोच में बदलाव आया, एक अच्छा शुभ परिणाम है. With this kind of transformation of attitudes taking place at all levels, Swachh Bharat is just around the corner and may even be the target set by the Prime Minister will be fulfilled, I am confident. So friends, there was some slow movement in the beginning, but later, after everybody has realized their responsibility, the momentum has now picked up. It has gained significant momentum over the last about 1 year. As a result, today see the result. As a result, Gujarat and Andhra Pradesh are now in a position to proclaim from tomorrow that urban areas in these two states have become open defecation free. These are the states. And we are also having information that Kerala is going to follow it, then followed by Maharashtra, then other states also. Kerala is set to follow the same this year itself. A few other states like Maharashtra, Himachal Pradesh, Mizoram and northeastern states are also racing towards their urban spaces free of open defecation. 405 cities and towns are now in a position to claim to become open defecation free. 739 of the 4,041 cities and towns, including Swachh Bharat Mission, would reach ODF status by March next year, that is 2017. As per the reports received from the states, 20,000 of the 82,000 urban wards have addressed the issue of open defecation. In urban areas, over 24 lakh individual household toilets have been built and another 19 lakh toilets are close to completion. 90,000 community and public toilet seats have been built and another 1,29,000 seats are under construction. From counting the number of toilets being built, we are now at a stage of counting the number of cities and towns becoming open defecation free. Similarly is the case in the rural areas. In the rural area also, the momentum has picked up. People have realized the need for having this open defecation free. So far, so good. This Grand India Sanitation Alliance is meeting today to count the progress and, more importantly, to look at the road ahead and challenges ahead for the next 3 years so that the Alliance can present the gift of Swachh Bharat as our best tribute to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on the occasion of his 105th birthday anniversary by 2019. All of us should take a pledge that we will join this movement and will make it success. Friends, as I told you that the government of India, the Prime Minister has told all of us we must work as Team India, center, state and urban local bodies and Panchayat Raj local bodies. We should come together. We are a Team India. We believe in cooperative federalism, so we are working together. There is no scope for politics. Government of India will give hand-holding to all the states, and various states have set various examples. This session, we are going to have presentation by various chief ministers and ministers subsequently. They will be talking about their good practices, best experiences, so that we can learn from each other's experiences and then move forward. Friends, I am very happy to have this conference today, and that too, India means urban as well as rural. So that's why both of us have joined together and then have come as an alliance before you and then sought your cooperation. I'm happy almost all the states are present today in the meeting. And also the representatives of the municipal bodies, they are also here today. So we are the real stakeholders. If we all join together, we will be able to fulfill the mission. Thank you very much. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, अब स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और मंच पर विराजमान अन्य अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच के सामने की ओर आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब पुरस्कार वितरण प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम
माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि कुछ पुरस्कार वे अपने कर कमलों से दें। देवियों और सज्जनों, स्वच्छ भारत मिशन के प्रति उल्लेखनीय योगदान हेतु नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दर्शकगण सावधान, स्वच्छता परेड के लिए सभी कैडेट तैयार हैं श्रीमान। सभी कैडेट ने साल भर में 100 घंटे का श्रमदान करने का फैसला किया है। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 1 से 15 अगस्त के दौरान 6 लाख कैडेट ने जन भागीदारी से रैलियों के द्वारा, स्ट्रीट प्ले के द्वारा सफाई के अलग अलग विषयों पर सेमिनार किया एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री और पुस्तिकाओं का वितरण भी किया। दर्शकगण सावधान, सभी कैडेट द्वारा स्कूल, कॉलेज, मार्केट, पब्लिक स्टैच्यू, पार्क्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, रास्ते, ऐतिहासिक स्थानों और बस एवं रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान किए जा चुके हैं श्रीमान। इन्होंने नदियों को भी साफ करने का बीड़ा उठाया है श्रीमान। पोस्टर कंपटीशन और मीडिया इंटरैक्शन के द्वारा जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी पूर्ण किया है। तो दर्शकों, एनसीसी कैडेट्स की इस स्वच्छता परेड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जय हिंद। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं 2 प्रतिनिधि कैडेट्स राघव झा और स्वाति शर्मा और साथ में एनसीसी के मेजर जनरल श्री संधू। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी के तहत रैक पिकर्स पुणे को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पुणे शहर को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुणे वालों नमस्कार। कॉलर को जरा ऊपर उठा लो, क्योंकि देश को स्वच्छ रखने में सबसे आगे निकल गया है अपना पुणे। और ये सुपर कूल काम किया है हमारे स्वच्छ कोऑपरेटिव के रैग पिकर्स भाइयों और बहनों ने। ये हमारे 2700 रैग पिकर्स भाई बहन हर रोज 4 लाख घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। रिसाइकलेबल कचरा सीधा रिसाइकल मार्केट पहुंचता है और नॉन रिसाइकलेबल कचरे को खाद बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। कचरे से खाद बनती है और ग्लोबल वार्मिंग से बचने में मदद भी मिलती है। पहले असंगठित और असुरक्षित रहने वाले इन रैग पिकर्स को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के इस प्रयास से मिली सुरक्षा और उनकी आय में भी हुई 20,000 रुपए तक की वृद्धि। साथ साथ उन्हें ग्लव्स और सैनिटेशन देकर बनाया उनका जीवन बेहतर। ना, सिर्फ थैंक यू से बात नहीं बनेगी। स्वच्छ कोऑपरेटिव को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिलने जा रहा है भारत सरकार का पुरस्कार। स्वच्छ भारत अभियान में पुणे का एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ सहकारी समिति के प्रतिनिधि श्रीमती राजाबाई सावंत एवं पुणे नगर निगम के महापौर श्री प्रशांत जगताप और पुणे नगर निगम के आयुक्त आदरणीय श्री कुणाल कुमार सम्मिलित रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में स्वच्छ जिला श्रेणी का पुरस्कार मंडी जिला को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुनो 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 भाइयों बहनों सुनो, मंडी जिला खुले में शौच से मुक्त है। घर घर में शौचालय है, सभी लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। कुछ दिनों पहले हुए एक सर्वे के दौरान पाया गया कि गांव में किसी भी घर के बाहर कूड़ा कचरा जमा नहीं होता है। 99% घरों के बाहर कोई गंदा पानी भी जमा नहीं होता और 95% सार्वजनिक स्थान स्वच्छ पाए गए।
मंडी जिले को स्वच्छ बनाने में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के महिला मंडलों ने मंडी के घरों में कूड़ेदान पहुंचाए, सोक पिट्स, वर्मी कंपोस्ट पिट्स और गार्बेज पिट्स बनाए, सार्वजनिक जगहों की सफाई की। सुनो सुनो सुनो, मंडी जिले को इस सफलता के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों में से सबसे स्वच्छ जिले का पुरस्कार दिया जा रहा है। इस प्रकार मंडी जिले ने बढ़ाया है अपना एक कदम स्वच्छता की ओर। मंडी जिला 1 के जिला कलेक्टर श्री संदीप कदम और स्वच्छता चैंपियन श्रीमती कांता देवी संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि पुरस्कार प्रदान करें। खुले में शौच मुक्त शहर श्रेणी का स्वच्छता पुरस्कार मैसूर शहर को प्रदान किया जाता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्वच्छता समाचार। समाचार की शुरुआत करते हैं मैसूर से, जिसने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करके दिखाया है। मैसूर ने प्रण लिया था कि शहर के हर एक नागरिक को शौचालय की सुविधा प्राप्त होगी और आज मैसूर ने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सक्षम ड्रेनेज सिस्टम के जरिए ये प्रण पूरा किया है। साथ ही में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के अभियान भी चलाए गए। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के लगातार सहयोग से ये सपना साकार हुआ है और आज मैसूर को पुरस्कृत किया जा रहा है 10 लाख लोगों की आबादी वाला पहला 100% खुले में शौच मुक्त शहर के रूप में। तो मैसूर के साथ आइए हम भी एक प्रण लें, एक कदम स्वच्छता की ओर। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित है मैसूर नगर निगम के महापौर श्री बायरप्पा बल्लूर लक्ष्मी और मैसूर नगर निगम के आयुक्त श्री जगदीशा। दोनों मंत्रालयों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वच्छ विद्यालय श्रेणी का पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को प्रदान किया जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों बोलो, स से स्वच्छता और द से देहरादून। तो बच्चों, खुशखबरी ये है कि केंद्रीय विद्यालय FRI देहरादून को देश का सबसे स्वच्छ स्कूल घोषित किया गया है। और बच्चों, विद्यार्थियों से लेकर टीचर तक सभी ने मिलकर स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाया है। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कूल में इको क्लब, सोलर पैनल, टॉयलेट में सफाई, परिसर के 60% हिस्सों में हरियाली, सफाई पर चर्चाएं और मेडिकल चेकअप का भी प्रबंध किया गया है। तो बच्चों, हम 3 तालियां बजाकर केंद्रीय विद्यालय देहरादून का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इसे देश के सबसे स्वच्छ स्कूल के तौर पर पुरस्कृत करके हमें गौरवान्वित किया जा रहा है। तो इस क्लास से आपको क्या सीख मिली? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं आयुक्त केंद्रीय विद्यालय श्री संतोष कुमार मल और विद्यालय के प्रधानाध्यापिका डॉक्टर श्रीमती चारू शर्मा। केंद्रीय विद्यालय FRI देहरादून को दोनों मंत्रालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी। और अब केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि पुरस्कार प्रदान करें। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में स्वच्छ जिला श्रेणी का पुरस्कार सिंधुदुर्ग जिला को प्रदान किया जाता है। मैं हूं सिंधुदुर्ग। मेरे पास शिक्षित और समझदार जनसमाज है, जिसकी ताकत को मैंने स्वच्छता के लिए जुटाया। सामुदायिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से महिलाओं को जोड़ा,
तटीय क्षेत्रों के सफाई अभियान में 5000 स्वयं सेवकों को जोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आंगनबाड़ी के बच्चों को टॉयलेट के उपयोग की आदतें सिखाई गई। तभी तो मैं पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हूं। 96% घरों को मिली आसपास पड़े रहने वाले कूड़े से आजादी। 98% घरों को मिली गंदे पानी से आजादी और 94% सार्वजनिक स्थान है संपूर्ण स्वच्छ। स्वच्छता में मुझे मिले 100 में से 96.8% अंक। आज मुझे गर्व है कि मैं देश के पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में से सबसे स्वच्छ जिले के रूप में पुरस्कृत किया जा रहा हूं। मेरे साथ आप भी बढ़ाइए एक कदम स्वच्छता की ओर। सिंधुदुर्ग के जिला पंचायत के सीईओ श्री शेखर सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संग्राम प्रभु गांवकर संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सिंधुदुर्ग जिला को दोनों मंत्रालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। स्वच्छ सांस्कृतिक धरोहर स्थल श्रेणी का पुरस्कार रानी की वाव, पाटन, गुजरात को प्रदान किया जाता है। गुजरात की 900 साल पुरानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। वडोदरा के विद्यार्थियों, एनएसएस, एनसीसी और भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण विभाग द्वारा जन भागीदारी पर बल देते हुए यहां पर स्वच्छता को लेकर शानदार प्रयास होते रहे हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी से लेकर गांधी जयंती, गुजरात स्थापना दिवस, इन सभी मौकों पर यहां स्वच्छ भारत की झलक देखी गई है। तो आज रानी की वाव को सबसे स्वच्छ सांस्कृतिक धरोहर स्थल के तौर पर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार मिल रहा है। बच्चों, बूढ़ों और जवानों, हाथ बटाओ और बढ़ाओ एक कदम स्वच्छता की ओर। भारतीय पुरातत्व विभाग वडोदरा सर्कल के सुपरिंटेंडेंट आर्किटेक्ट श्री एम कालीमुथु पुरस्कार ग्रहण करेंगे। धन्यवाद माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। और अब माननीय राज्य मंत्री शहरी विकास आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करें। पुरस्कार के लिए आमंत्रित है अगला पुरस्कार खुले में शौच मुक्त शहर श्रेणी के लिए चंडीगढ़ शहर को प्रदान किया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ बना है 100% खुले में शौच मुक्त। यहाँ करीब 1054 सामुदायिक शौचालय बनाए गए, 14,000 घरेलू शौचालय बनाए गए, अतिरिक्त 68 पब्लिक टॉयलेट्स सीट्स भी बनाए गए। स्लम विस्तार में भी प्रति 500 मीटर के अंतर पर शौचालय बनाए गए हैं, जिनका निःशुल्क कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। हर मार्केट एरिया में भी आधुनिक सुविधाओं के साथ शौचालय बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बाग, बगीचों और लेक एरिया में भी शौचालय बनाए गए हैं। कैसे जानना चाहता है पूरा देश? तो सुनिए, 3600 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों, 1000 से ज्यादा मालियों की 2 साल की मेहनत ने बनाया चंडीगढ़ को स्वच्छता की राजधानी। तभी तो आज चंडीगढ़ ने हासिल किया है 100% खुले में शौच मुक्त शहर का पुरस्कार। चंडीगढ़ के साथ हम भी बढ़ाएं एक कदम स्वच्छता की ओर। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर श्री अरुण सूद और नगर निगम आयुक्त श्री बी पुरुषार्थ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। चंडीगढ़ शहर को दोनों मंत्रालय की ओर से ढेर सारी बधाइयां और अभिनंदन। स्वच्छ रेलवे स्टेशन श्रेणी का पुरस्कार सूरत रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है। सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप हैं भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन पर, गुजरात का सूरत स्टेशन। कृपया ध्यान दें कि इस रेलवे स्टेशन पर 115 कर्मचारियों का काफिला 3 शिफ्ट में दिन रात काम करता है। सफाई के कई उपकरण यहाँ काम में लगे हुए हैं।
कहीं पर वैक्यूम क्लीनर की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं हाई प्रेशर वाटर जेट मशीन से गंदगी को अलविदा कहा जा रहा है, तो कहीं स्क्रबर ड्रायर से सरफेस को चमकाया जा रहा है। और इसी वजह से देश के सबसे साफ रेलवे स्टेशन का अवार्ड दिया जा रहा है सूरत रेलवे स्टेशन को। स्वच्छ भारत अभियान में सूरत रेलवे स्टेशन का एक कदम स्वच्छता की ओर। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं स्टेशन मास्टर सूरत रेलवे स्टेशन श्री चंदमल खटिक और डीआरएम पश्चिम रेलवे। डीआरएम पश्चिम रेलवे श्री मुकुल जैन और सूरत रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब माननीय राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता श्री जिगा जिनागी जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि पुरस्कार प्रदान करें। स्वच्छ पर्यटक स्थल श्रेणी का पुरस्कार गंगटोक सिक्किम को प्रदान किया जाता है। स्वच्छता को अगर छू कर देखना हो, स्वच्छता को अगर महसूस करना हो, स्वच्छता को अगर शांति की गोद में खेलते हुए देखना हो, तो आइए भारत के सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थल पर गैंगटॉक। 100% गंदगी मुक्त, 100% खुले में शौच मुक्त, 100% घरेलू शौचालय युक्त, 100% वेस्ट मैनेजमेंट युक्त और 100% स्वच्छता युक्त। और प्लास्टिक की थैलियां फेंकना तो घोर अपराध है। तभी तो गैंगटॉक इतना खुशहाल है। आइए गैंगटॉक की खुशियों को 4 चांद लगाते हैं। गैंगटॉक को सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थल के पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और बढ़ाते हैं एक और कदम स्वच्छता की ओर। गंगटोक नगर निगम आयुक्त श्री भूटिया एवं आंचलिक पर्यटन निदेशक उत्तर पूर्व श्री संजय श्रीवास्तव संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। गंगटोक नगर निगम को दोनों मंत्रालय की ओर से ढेर सारी बधाइयां। स्वच्छ चिकित्सालय श्रेणी का पुरस्कार पीजीआई चंडीगढ़ को प्रदान किया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है देश के सबसे स्वच्छ अस्पताल में, मतलब चंडीगढ़ की पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में, जहां पूरे दिन बतौर मिशन यांत्रिक और व्यवहारिक दोनों तरीकों से चालू रहता है सफाई का कार्य। पूरे अस्पताल में हर जगह स्टेनलेस स्टील की डस्टबिन्स रखी गई हैं। साथ ही कूड़े से खाद बनाने वाली मशीन को भी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बनाया गया है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो केवल मेडिकल का ही नहीं बल्कि देश को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाता है। तभी तो भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ पीजीआई को देश के सबसे स्वच्छ अस्पताल का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो अब अस्पताल में यत्र तत्र कूड़ा न फैलाएं और एक कदम बढ़ाएं स्वच्छता की ओर। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर योगेश चावला और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विपिन कौशल संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। दोनों मंत्रालय की ओर से पीजीआई चंडीगढ़ को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। इसी के साथ पुरस्कार वितरण संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण। देवियों और सज्जनों, स्वच्छ भारत मिशन एक महाअभियान का स्वरूप ले चुका है। इस महाअभियान के प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। आज के इस गौरव के क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें।
मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, मंत्री श्री रमेश जी, सचिव श्रीमान राजीव गौबा जी, परमेश्वरन जी, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, देश भर से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। और 2019 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती से लेकर के 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ये हमारे सामने समय सीमा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। और उसी के तहत 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेकविध कार्यक्रम जो स्वच्छता केंद्रीय हैं, और उसी के तहत आज इस एंडोसाइन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि किसी को भी गंदगी पसंद होती है, किसी को भी नहीं होती है। लेकिन स्वच्छता का स्वभाव नहीं बनता है। ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट है, जिस कॉन्ट्रास्ट को हमने उस दूरी को कम करना है। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा होना चाहिए, घृणा पैदा होनी चाहिए। गंदगी नजर आए तो मन अस्वस्थ हो जाना चाहिए। और इन दिनों मुझे जिन जिन लोगों से मिलना होता है, तो बड़े बड़े लोग भी कभी कभी मुझे कहते हैं हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अकेले आते हैं, लेकिन कागज लेके आते हैं, डायरी लेके आते हैं। मैं पूछता हूं क्या करोगे? बोले मेरा पोता है, उसको चाहिए। बोले वो हमारे पूरे घर में स्वच्छता के मुद्दे पर हम सबको डांटता रहता है। हम कोई भी गलती करे तो वो तुरंत पकड़ता है, क्यों ऐसा डाला, दादा ऐसा क्यों करते हो। बालक मन सब दूर से खबर आती है कि बालक मन में ये संस्कार स्थिर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वच्छता अभियान बहुत कम समय में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुआ है। किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक दल को, जिनको बार बार चुनाव में जाना पड़ता है,
हमारे देश में हर दूसरे साल कहीं न कहीं चुनाव होता है, हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है। ऐसे चुनाव की सोच वाले किसी राजनेता के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए स्वच्छता जैसा कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हर पल गंदगी की संभावना होती है। और आजकल तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर कैमरा है, तो फोटो निकलने की और प्रचारित करने की भी संभावना रहती है। तो डर लगता है कि यार ऐसा करो, इसको छुपा के रखो, बाकी बातें करें। लेकिन इन दिनों राजनेता बहुत पीछे छूट गए हैं, राजनीतिक दल भी बहुत पीछे छूट गए हैं, जनता बहुत आगे निकल चुकी है। अगर एक शहर साफ स्वच्छ होने का इनाम लेता है तो उस इलाके दूसरे 10 शहर अपने शहर के नेताओं का सवाल पूछते हुए क्या कारण है, चंडीगढ़ तो इनाम ले आया, शिमला क्यों नहीं लाया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, मनाली क्यों नहीं ले आया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, अमृतसर क्यों नहीं लाया? लुधियाना क्यों नहीं लाया? जालंधर क्यों नहीं लाया? प्रेशर पैदा होता है। और मुझे मालूम है, पिछली बार जब मैसूर वालों ने इनाम लिया था तो बेंगलुरु में बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। क्या हो गया? बेंगलुरु पीछे क्यों हट गया? एक स्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है, और ये स्पर्धा का माहौल इच्छा से भी अनिच्छा से भी स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए हर किसी को मजबूर करके रहेगा। आमतौर पर सरकार कोई कार्यक्रम लाए तो मीडिया का पहला काम होता है, अच्छा ये लेके आए वो देखते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जिसको अगर मेरे से भी ज्यादा किसी ने प्रमोट किया हो तो मीडिया के मित्रों ने किया है, और सकारात्मक रूप से किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विषय पर हर किसी के मन में कुछ न कुछ तो बीज पड़े थे। भारत विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, और हमारी आदतें भी बड़ी कमाल की है जी। हम ऐसे लोग हैं, घर में मेहमान आने वाले हो तो आने से पहले सब ठीक ठाक करने लगते हैं। चीजें थोड़ी दिखती हो तो अगल बगल में जगह, छोटी जगह हो तो ऊपर एक चादर उड़ा देंगे, है सब कोई करते हैं। लेकिन वही लोग अपने गांव में जो अच्छे से अच्छी खुली जगह हो, खुलापन अच्छा लगता हो, उसी को कूड़ा कचरा फेंकने की पसंद की का सबसे पहला टारगेट होता है। हर गांव में देखिए, जो अच्छे से अच्छा खुला मैदान होगा उसी पर गांव का कूड़ा कचरा फेंकने का मजा आता है। घर में छुपाने का मजा आता है, गांव में शहर के बीचों बीच ढेर करने का मजा आता है। क्यों? हमें ये लगता ही नहीं है, और हम लोगों का स्वभाव है, 20 साल पुराना स्कूटर हो, अब कलर भी बचाना हो, स्पेयर पार्ट भी बदलते बदलते सब नए आ गए हो, लेकिन फिर भी सुबह उठ के कितने ही बड़े बाबू क्यों ना हो, बराबर घिस घिस के स्कूटर को साफ करते हैं, क्योंकि मेरा स्कूटर है। लेकिन बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं, और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा
तब तक 3 चीज का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। इसमें से कोई नहीं होगा जिसने ये काम न किया हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना भी टूटा फूटा रंगहीन स्कूटर मेरा है, बस तो सरकार की है। ये भूल जाते हैं कि सरकार भी हमारी है। जिस दिन हम मानेंगे सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, हर संपत्ति हमारी है, हमारा स्वभाव बदलेगा। और एक बार ये हमारा अपनेपन का जब विस्तार होता है ना, तो उसका सुख कुछ और होता है। और इसलिए स्वच्छता बजट से नहीं आती है जी। बजट से तो टेंडर निकलते हैं। और टेंडर क्यों निकलते हैं, भली भांति पुराना इतिहास तो मालूम है। अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गांव, कोई शहर, कोई इलाका अगर मन में ठान ले ये बाकी सब ठीक है साहब, हमें गंदगी नहीं रहने देनी है, तो बदलाव आता है। स्वच्छता के लिए ऐसा नहीं है कि कोई देश के प्रधानमंत्री को दिमाग में चीज आई है। अपने अपने तरीके से सामान्य जनों ने अपने अपने इलाके में कोई न कोई प्रयास किया ही है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के भारत में अब हम भारत को गंदा नहीं रहने देंगे, ये मूल मंत्र के लेके चले, तो बदलाव मुश्किल काम नहीं है जी। हम तय करें, ठीक है भाई ऐसा ही चलता है, तो हिंदुस्तान की सरकार का, राज्य सरकारों का 100% बजट स्वच्छता में डाल दें तो भी स्वच्छता नहीं होगी। लेकिन अगर हम देशवासी तय कर लें कि अब गंदगी नहीं सहन करेंगे, न गंदगी करेंगे, न गंदगी करने देंगे, आप देखिए बजट हो या ना हो, स्वच्छता अपने आप आना शुरू हो जाएगी। मुझे एक बार एक आंगनवाड़ी में जाने का अवसर मिला। अब आंगनवाड़ी में गरीब बस्ती के बच्चे आते हैं और वहां जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, शायद 5वीं 7वीं कक्षा पढ़ी होगी, ज्यादातर गरीब परिवार से होते हैं वो महिलाएं जो काम करती हैं। हम लोगों को मालूम है हमारे देश में कितने भी अमीर परिवार क्यों न हो, लेकिन अगर साड़ी वगैरह पुरानी हो जाती हैं तो रखे रखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो प्याला बरनी बेचने वाला आएगा तो बदले में बर्तन लेंगे। कितना ही सुखी परिवार हो, इंतजार करते हैं कि साड़ी रखे रखो, वो बर्तन बेचने वाला आएगा तो साड़ी के, पुरानी साड़ी के बदले में बर्तन मिलेगा। उस आंगनवाड़ी की गरीब बहन ने क्या किया, अपनी इस पुरानी साड़ी के टुकड़े किए, छोटे छोटे हैंडकरचीफ बनाए, और आंगनवाड़ी के बच्चे जब स्कूल आते थे तो वो सेफ्टी पिन से उनको लगा देती थी वो हैंडकरचीफ, और बच्चों को सिखाया था कि नाक वगैरह साफ करना है तो ऐसे करना। अपनी साड़ी बेच करके उसको कोई बर्तन मिल सकता था, लेकिन उसने, और हर दिन शाम को जब बच्चे वापस जाते थे तो खुद उन हैंडकरचीफ को वापस लेती थी, घर ले जाकर के धोती थी, दूसरे दिन सुबह ले आती थी, बच्चों को फिर टांग देती थी। बच्चों की आदत स्वाभाविक बन गई थी। और अगर किसी बच्चे को, कोई मुझे बताए क्या बजट लगा क्या, यही काम हैंडकरचीफ देने का हुआ होता तो न जाने कितने मंत्री कहीं कहां कहां पहुंच गए होते। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समस्या का समाधान
स्वच्छता स्वभाव बनने में ही है। स्वच्छता ये स्वभाव बनना चाहिए। जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पीठिका तैयार की, और ये सत्याग्रह था जिसने मां भारती को गुलामी से मुक्त किया। मुझे लगता है कि अब जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तब जैसे सत्याग्रही गुलामी से मुक्ति दिलाता रहे, तो स्वच्छाग्रही गंदगी से मुक्ति दिला सकता है। हम हर गली मोहल्ले में, इलाके में, गांव में, शहर में स्वच्छाग्रहियों की फौज कैसे तैयार करें। आजादी के दीवाने सत्याग्रहियों का जितना महामूल्य था, उतना ही गंदगी से मुक्त कराने के लिए, भारत को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छाग्रही का भी उतना ही महात्मा रहेगा। ये वातावरण बना सकते हैं क्या? यहां हमारे शहरी विकास मंत्री वेंकैया जी आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, तो मैंने सुझाव दिया उनको, वो सोचेंगे कुछ। मैंने कहा टीवी पर भांति भांति के समाचार आते हैं, रेडियो पर भी कई चीजें आती हैं। कुछ रेडियो हैं जो समाचार देते हैं, कुछ रोज एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। क्यों न हम एटलीस्ट दूरदर्शन से शुरू करें, जिसमें दिन में 1 या 2 बार स्वच्छता समाचार का ही भाग हो, और स्वच्छता के संबंध में जो होता है उसी पर खबरें हो। स्वच्छता कैसे हुई, क्या किया, क्या प्रयोग किया, और देश के कोने कोने में चल रहा है। इससे क्या होगा, हर किसी का अटेंशन जाएगा कि भाई हमारे देश में ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। देश आजाद हुआ, कभी संसद ने स्वच्छता पर चर्चा नहीं की, कभी नहीं की। इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले स्वच्छता देश और अभी मोदी आने के बाद गंदा हो गया है। पहले इस देश में किसी ने राज्य सरकारों को, राजनेताओं को नहीं पूछा है कि भाई ये गंदगी का क्या कहना है। लेकिन आजकल हर तीसरे महीने को उनको पूछना, मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है स्वच्छता की, देखो ये ऐसा पड़ा है। कैसी जागरूक, भले जवाब मेरा मांगा जा रहा है, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन कम से कम जवाब मांगने का स्वभाव तो बनने लगा है। लोग इसके पीछे आवाज तो उठाने लगे हैं। ये जिम्मेवारी का वातावरण अगर हम पैदा करें तो हम स्वच्छता में सफल होके रहेंगे। अब देखिए टॉयलेट बनाना, कोई पहली सरकारों ने नहीं किया, ऐसा नहीं, पैसे नहीं देते थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन जब से ये जन आंदोलन बना, लोगों को लगा है कि अच्छा टॉयलेट नहीं है, तो एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि टॉयलेट नहीं है तो भाई आप समाज में कुछ स्थान आपका कम है, ये भाव बनने लगा है। तो लोगों को लगता है कि बाकी कुछ हो या ना हो, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। और आज जैसा माहौल बनाए, लोग जागरूक हुए हैं, वे अब खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा बल दें, थोड़ी मदद करें। और कई राज्यों ने तो मैंने देखा, स्वच्छता हमें मान के चले कि इसके साथ बहुत बड़ा अर्थकारण भी जुड़ा हुआ है। रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, नगर पालिका, महानगर पालिकाएं उसमें से धन कमा सकती है। हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में योजना कर सकते हैं, और हमारा मकसद ये होना चाहिए वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करनी है। अब तक हम क्या करते थे, वेल्थ को वेस्ट में कन्वर्ट करते थे। गांव का अच्छा सा अच्छा चौक हो, कूड़ा कचरा डाल दिया, कीमत खत्म उसकी। मैं जहां से पहले असेंबली में चुन करके आता था, एमएलए जहां से बनता था, वहां से एक नाला निकलता था, और करीब वो 18-20 किलोमीटर लंबा नाला था उस इलाके में। तो 2-3 असेंबली सेगमेंट को छूता हुआ वो आता था।
अब उस नाले में पानी तो कभी नजर नहीं आता था, लेकिन उस इलाके के सब लोगों को कूड़ा कचरे के लिए उत्तम जगह वही लगती थी। हमने उस समय जब एमएलए थे तो लगा कि चलो भाई कुछ करें, तो हम सफाई वफाई शुरू की और उसको थोड़ा करने लगे। उस गंदगी के कारण उस इलाके में जो फ्लैट थे, वो फ्लैट करीब करीब अगर इलाके में 10 लाख कीमत है तो वो 1.5 लाख में बिक जाते थे। लोगों को लगता है इसके सामने लेना नहीं मकान, और जो पहले लेकर के बनाए थे वो भी बेचारे बेचने को गंद थी। जब उसकी सफाई की और उसको जरा ठीक ठाक किया, जो 1.5 लाख के फ्लैट थे 10 लाख के 1.5 लाख हो गए थे, वो 15-20 लाख तक उसकी कीमत पहुंची। एक बहुत बड़ा नया रेवेन्यू मॉडल खड़ा हो गया जस्ट सफाई के कारण। फिर उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया था, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा बनता है। आज देखिए जमीन बहुत महंगी है। आज सरकारी किसी काम के लिए एक अस्पताल भी बनाना हो, जमीन लेनी हो, तो 2-2 साल तक फाइल चलती है, कागज घूमते रहते हैं और दाम इतने देने पड़ते हैं। सरकार का बजट भी कभी खुद हो जाता है। 6 अस्पताल बनानी है तो 2 बना करके छोड़ना पड़ता है। लेकिन अच्छे से अच्छी जमीन हम लैंडफिल के लिए बर्बाद कर देते हैं। कॉस्टलीस्ट लैंड, उस पर हम कूड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं। अगर हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था करें, उसके सेग्रीगेशन की व्यवस्था करें, प्रॉपर चीजों का यूटिलाइजेशन करें, हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो मूल्यवान जमीन तो बचेगी, लेकिन ये वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट होगी, एक नया इकोनॉमी का क्षेत्र खुलेगा। भारत सरकार ने कूड़े कचरे से जो बिजली पैदा करेंगे उतनी बिजली खरीदने का सामने से निर्णय किया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, ताकि प्रोत्साहन मिले। वो बिजली महंगी होगी तो महंगी भी भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है, ताकि कूड़े कचरे को वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में काम कर सके। और इसलिए अब मैंने देखा है कि कुछ मंदिर होते हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में फूल आते रहते हैं, और कभी कभी वो फूल ही उस एक गंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग हैं जो मंदिरों के साथ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उसमें से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, उस फूलों के वेस्ट में से, तो सुगंध की सुगंध मिल जाती है, नेचुरल फ्रेश काम में आ जाता है। कुछ लोग उसमें से कंपोस्ट बनाने लग जाते हैं। अपने ही नगर के जो गार्डन होते हैं, इस गार्डन के कोने में एक छोटा सा गड्ढा करके अर्थवॉर्म ला करके वर्मी कंपोस्ट करने का काम करते हैं, जो उस बगीचे के लिए काम आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हर नगर शहर में सब्जी बेचने की एक जगह होती है। सब्जी बेचने वाले शाम को चले जाने के बाद वहां कूड़ा कचरा पड़ता है। उसको परफेक्टली कोई अगर रेवेन्यू मॉडल बनाए तो मैं विश्वास से कहता हूं वो इनकम का एक साधन बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसे वेस्ट न माने, हम इसे वेल्थ मान करके उसको ट्रीट करें। आप देखिए, स्वच्छता तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। मेन काम वेस्ट में से वेल्थ के। अभी प्लास्टिक, आज प्लास्टिक को आप टेक्नोलॉजी के द्वारा, केमिकल के यूज के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से अच्छे रोड बनाने के मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 7 से 10% अगर मिक्सअप करें तो रोड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर 40 रुपये केजी टार मिलता है और 20 रुपये केजी आप पुराने ऐसे गंदे प्लास्टिक लोगों से ले ले, तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा डामर बच जाएगा और हमारा वेस्ट में से रोड भी बन जाएगा। हम जब तक इस दिशा में नहीं सोचते हैं, मैं समझता हूं कि हम सिर्फ नगर पालिका, महानगर पालिका के नाते, जिले के नाते, राज्य के नाते इन चीजों के लिए प्लान नहीं करते हैं तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रीयूज हो सकता है, और हमारे देश में ये दुनिया में जो
यूज एंड थ्रो वाली कल्चर आया, हमारा देश का वो कल्चर नहीं है। ये रिसाइकल, रीयूज, ये भारत में सिखाने पड़ा ऐसा नहीं है जी, हमारे यहां ब्लड में था। पुराने जमाने में कपड़े अगर पुराने हो गए तो दादी माँ क्या करती थी, रखे रखती थी। सर्दियों की सीजन आती थी, अगर जरूरत पड़ा तो उसमें से छोटा बना करके छोटे बच्चे के लिए उसमें से कपड़े बना देती थी। फिर भी वो काम ना आ जाए तो उसमें से ओढ़ने के लिए वो रजाई बना देती थी उसी पुराने कपड़ों में से। वो भी खत्म होने जाए तो उसी से सफाई के लिए वो पोता बना देती थी। यानी रिसाइकल करने का हम लोगों के स्वभाव में था। ये कोई दुनिया के दूसरे देशों से हम लेने की जरूरत नहीं है। रीयूज, रिसाइकल, ये हमारा मूल स्वभाव था। उसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हमने बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये अगर इनिशिएटिव हम लेते हैं तो हम परिणाम ला सकते हैं। हम उसकी दिशा में कैसे प्रयास करें। कभी पानी का अभाव वो भी स्वच्छता के लिए संकट पैदा करता है और कभी पानी का प्रभाव भी स्वच्छता के लिए संकट पैदा करता है। और इसलिए उसकी उपयोगिता के लिए, आवश्यकता के अनुसार हम उसको कैसे दे रहे हैं। जहां पानी है, अरे भाई ले जाओ, जितना लेना है ले जाए। जहां पानी नहीं, वो बेचारा पानी के बिना मर रहा है। हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की दिशा में कैसे काम करें। स्वच्छता अभियान एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब मैंने थोड़े दिन पहले कहीं मैं देख रहा था तो बंगाल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मेसन्स के ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए और करीब 2,500 लोग तैयार हुए जो सिर्फ शौचालय बनाने के लिए उनका हुनर आ गया और वो काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम काम कर सकते हैं। हम इन चीजों पर कैसे बल दें, हम एक बहुत बड़ी मात्रा में इसको काम कैसे कर सके। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। बैंकों से पैसे मिलते हैं मुद्रा योजना के द्वारा। मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आप स्टार्टअप के रूप में ऐसी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कीजिए ताकि स्वच्छता की दृष्टि से वो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी हो और स्केलेबल टेक्नोलॉजी हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के पास इस प्रकार के नौजवान है, टैलेंट है। हमारे यहां कूड़ा कचरा किस प्रकार का है उसको पूरा ज्ञान है उसको, और उसको प्रोसेस करने से क्या परिणाम आ सकता है उसको भली भांति समझ आ सकता है। अब आप देखिए, इन दिनों हम लोग एक बड़ा मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि गरीब के घर में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है वहां गैस कनेक्शन देना, उज्ज्वला योजना। अब हमारे देश में मालूम है पहले गैस कनेक्शन लेना कितना मुश्किल होता था। एमपी को 25 कूपन मिलती थी और एमपी अगर किसी को एक कूपन दे दें तो वो तो जीवन भर उसको ऑब्लाइज करता रहता था। ये मूड था। आज हम सामने से क्यों, वो भी एक स्वच्छता का ही अभियान है कि हम उन गरीब मां को धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। एयर पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो भी स्वच्छता का एक रूप है। हम लोग अगर तय करें, प्रयास करें। अब देखिए, इस बार स्पर्धा में तीर्थ क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो एक प्रशिक्षण का केंद्र भी होता है। अब आप तिरुपति चले जाएं या वैष्णो देवी चले जाएं, पहले के जमाने में इन मंदिरों की चर्चा क्यों होती है? तो वहां जो भी प्रबंध करने वाले लोग थे उन्होंने स्वच्छता पर बहुत बड़ा बल दिया। उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उसका असर इतना है कि आज भी कोई वैष्णो देवी जाएगा तो उसको लगता है सफाई क्या, और आपको रास्ते भर में दिखेंगे लोग कि थोड़ा सा भी घोड़े ने कुछ गंदगी की है तो उसकी 2 मिनट में पीछे कोई आएगा, सफाई करेगा। आप तिरुपति जाइए, आपको पूरे रास्ते पर लगेगा वाह, तो स्थान भी बहुत ही सुंदर है और फिर स्वच्छता के कारण उसमें और सोने पे सुहागा हो जाता है। क्यों ना हमारे तीर्थ क्षेत्र, मंदिर हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, कोई भी हो,
उसके आसपास के 1-2 किलोमीटर हम मॉडल रूप खड़ा कर सकते हैं। वहां पर आने वाले लोगों को प्रसाद के साथ एक पर्चा दे सकते हैं, भाई देखो ये मंदिर इसलिए आपको मंदिर जैसा लगा है क्योंकि उसका एक कारण भगवान है सिर्फ नहीं, स्वच्छता भी है। कितने ही बड़े से बड़े भगवान को गंदगी की जगह पे बिठा दो, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। अगर स्वच्छता के वातावरण में उस भगवान को बिठाओगे तो भगवान की भी तो अनुभूति होगी। और हमारे यहां तो कहा गया है जहां स्वच्छता वहां प्रभुता। और इसलिए जहां पर ये प्रकार के शांत चित्त बैठने की जगह है, जिसको अपने अपने परमात्मा को मानते हैं उससे सीधा कनेक्ट करने का माहौल हो, कम से कम उन इलाकों को तो हम स्वच्छ करें। जो बालक हमारा स्कूल में जाता है, कितनी बढ़िया स्कूल होगी, लेकिन अगर गंदगी से भरा हुआ मैदान होगा, हर स्कूल के कमरे के कोने में कुछ न कुछ कूड़ा पचड़ा होगा, और एक मामूली सा स्कूल होगा लेकिन साफ सुथरी होगी, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। उस बालक को पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी। आप भी अपने घर में थक करके आए हो और घर अस्त व्यस्त पड़ा है तो आपको थकान बढ़ जाती है, लेकिन कितने ही थक करके आए हो, घर में जिस कमरे में गए हो जरा साफ सुथरा ठीक ठाक है, आते ही फ्रेशनेस अनुभव करते हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको अच्छा पसंद है और अच्छे में खिलने का अवसर होता है। क्यों ना हम ये प्रयास करें कि हमारे देश में ये वातावरण बनाए, इसको हमें जिम्मेवारी के रूप में ले। अगर हम इसको करते हैं तो परिणाम मिलेगा। भारत सरकार स्वच्छता के लिए स्पर्धा करती है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां अलग अलग पैरामीटर को लेकर के, अलग अलग विषय इकाइयों को लेकर के एक स्वच्छता की स्पर्धा आयोजित कीजिए। मैं जो छोटा था तो मैंने देखा गांवों में स्वस्थ बालक की स्पर्धाएं हुआ करती थी। उसका वेट देखते थे, बच्चे लेकर के माताएं आती थी, उनको इनाम मिलता था, एक बड़ा माहौल बनता था। तो स्वस्थ बालक के लिए काफी वो एक वातावरण बनता था। आप गांव में वार्ड के बीच, इलाके के बीच, मंदिर के बीच, स्कूल के बीच स्पर्धा करवाएं स्वच्छता की। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अगर होगी तो फिर आप देखेंगे कि जब देशव्यापी जब इनाम देने की बात आएगी तो भारत सरकार को भी तकलीफ होनी चाहिए, जूरी को तकलीफ होनी चाहिए कि इसको इनाम दूं कि इसको। आज स्थिति ऐसी नहीं है। चंडीगढ़ को इनाम मिलना, पीजीआई को इनाम मिलना, सिक्किम को इनाम मिलना, ये अपने आप में जागरूक जगह है और पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी तो कभी जीतने के लिए ताकत के साथ मैदान में आए। हम पूरे सब दूर अगर माहौल बनाना है, स्पर्धा तीव्र तब होगी हम अपने राज्यों में, लोकल बॉडीज में ये स्वच्छता के स्पर्धा को बल दें। तो आप देखिए फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा, गांव में भी बनेगा, मोहल्ले में बनेगा। भाई ये 6 वार्ड है, ये 3 नंबर का वार्ड है, हर बार इनाम ले जाता है, चलो हम भी कुछ करें। अगर इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे और एक बार स्वच्छता आई तो फिर बाद में सुशोभन अपने आप आने लगता है। फिर ग्रीनरी का मन कर जाता है, फिर जरा चीजें अच्छी तरह रखने का मन कर जाता है। अपने आप में एक सामाजिक जीवन में बदलाव शुरू होता है। जब मैं इस स्वच्छता अभियान की बातें कर रहा था तो मुझे सोशल मीडिया में करीब आज से 1.5 साल पहले किसी ने लिखा कि मोदी जी आप स्वच्छता की बात करते हैं। मैं कल रेलवे में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन कोई जगह ही नहीं थी कि मैंने जो खाना खाया वो चीजें मैं कहाँ फेंकूं। पूरे डिब्बे में बोले मैं घूमता रहा। उसने मुझे लिखा तो मैंने तुरंत भारत सरकार में चिट्ठी लिखी कि भाई रेलवे कंपार्टमेंट में कहीं तो एक कोना बनाइए जहां पर लोगों को कुछ डालना। और मुझे बाद में बताया गया कि शायद उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब रेल कोई मैंने आकर के शुरू नहीं की है, कूड़ा कचरा कोई मेरे आने के बाद ही डाला गया, ऐसा नहीं है। कूड़ा कचरा भी पहले डाला जाता था, रेलवे भी चलती थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये भी करने का काम है। हर चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें परिणाम मिल सकता है। और इसलिए मैं आज जब आप सबके बीच आया हूं, मैं आग्रह करता हूं जिन लोगों ने इनाम प्राप्त किया है उनको विशेष रूप से मेरा शुभकामनाएं देता हूं।
इसमें कुछ इनाम वाले वो हैं जहां जन भागीदारी से परिणाम आया है। चाहे मंडी की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, वहां जन सामान्य ने आंदोलन को चलाया, उसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी ने बीड़ा उठाया है। अब एक समय ऐसा था, हम में से जितने भी स्कूल काल के उम्र में जब स्कूल में पढ़े हैं, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में श्रमदान करना ये विशेष विषय रहता था, साफ सफाई करना विषय रहता था। इन दिनों अगर किसी स्कूल में सफाई की तो साहब 24 घंटे चालू हो जाता है कि स्कूल वाले पैसे बचाने के लिए बच्चों से मेहनत करवाते हैं। पत्र हो गया साहब पता नहीं कहां से कहां बात चली जाती है। और उसके कारण जो स्कूल में उसका संस्कार होना चाहिए था, सप्ताह में 1 घंटा जो काम करना चाहिए था, वो करीब करीब छूट गया। परिवार में, स्कूल में, समाज में ये वातावरण हम कैसे बनाएं? और अगर ये वातावरण बनाते हैं तो बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टॉयलेट बनाने की दिशा में जागरूकता आई है, लेकिन टॉयलेट का क्या रहा है, मुझे 20-25 साल पुरानी घटना बराबर मुझे याद रहती है। गुजरात में था मैं, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं एक सामाजिक काम करता था। तो गुजरात में मोरबी में बाढ़ आई थी, वो डैम था वो फट गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन गया था। तो मैं उस समय फिर वहां जाकर के सफाई वगैरह कामों में लगा था, एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। तो बाद में एक संगठन ने तय किया कि कुछ गांव हम पुनर्निर्माण करें, गांव पूरे बह गए थे। तो जिन लोगों के साथ मैं काम करता उन्होंने 3 गांव लिए थे, 350-400 घर की बस्ती वाला एक गांव था, सारे खत्म हो चुके थे, नए मकान बनाने थे, रहने की व्यवस्था करनी थी। तो उस समय भी मेरे मन में था कि नहीं मकान तो बनाएंगे लेकिन टॉयलेट वॉयलेट बनाना है, किचन अलग हो, टॉयलेट अलग हो, ऐसा मकान तो हमें देना चाहिए। हम ऐसे ही कहने को कोई भी 2 कमरे वाला मकान खड़ा करे नहीं चले। खैर हमने धन संग्रह किया, बनाया। एक गांव था जहां काफी मात्रा में मुस्लिम परिवार थे, करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था। वहाँ के सरपंच भी बड़े उत्साही थे, नौजवान थे, तो वे भी चीज़ों को मेरे साथ करते रहते थे। फिर तो मैं वहाँ से चला गया। अचानक एक बार 2-3 साल के बाद वो सज्जन मुझे मिल गए, तो ऐसे ही परिचय हो गया, बस स्टेशन पे मिले थे। तो बोले मैं अभी भी सरपंच हूँ। मैं कहा अभी भी तुम सरपंच हो? यार क्या बात है, आजकल तो राजनीति ऐसे कि इतने दिन कहाँ से रह सकते हो। तो उसने मुझे बड़ा आग्रह किया कि साहब आइए, आप गांव में एक बार जब काम करते थे, इतना समय रहे, चले गए थे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार निकलूंगा तो आऊँगा। तो मैं करीब 3-4 साल के बाद उस गांव में फिर से गया। मैं इतना निराश हो गया। उस गांव का निर्माण करते समय इतना जी जान से काम किया था, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बनाए थे। जब मैं दोबारा गया, हर टॉयलेट में बकरी बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया? बोले साहब हमको तो पुरानी आदत है और बकरी के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई, आप अच्छा काम करें। मैंने कहा भला तो इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें, उनको तैयार करें, उनका स्वभाव बनाने के लिए प्रयास करें। नहीं तो ये एक और खोली मिल गई, थोड़ा सामान रखने के लिए काम आएगा, लकड़ी जलती बिक जाती है तो लकड़ी रख दो अंदर, उसी काम आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि हम चारों तरफ, और अगर राजनेता, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, शैक्षणिक क्षेत्र के लोग, ये अगर इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो ये सहज स्वभाव बन जाएगा। मैं फिर एक बार नरेंद्र सिंह जी को, वेंकैया जी को और उन दोनों के डिपार्टमेंट को, जो शहर और गांव दोनों में एक साथ सफाई अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, और इंडोसैन की जो कल्पना है, हमारे परमेश्वर जी कई वर्षों तक विदेश में रहे हैं तो उनके मन में बहुत बड़े आइडियाज रहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि नए नए विचारों के साथ, आधुनिक विचारों के साथ ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से आपने हम सभी को व्यवहार परिवर्तन की बात समझाई, हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। देवी और सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा था, अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी ये तय कर लें कि मैं गंदगी न करूँगा और न करने दूंगा, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को गंदा नहीं कर सकती। आज पुनः स्वच्छता के संकल्प को दोहराने का अवसर आ गया है। आज संपूर्ण भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है ये संकल्प लेने के लिए कि हम सभी अपने देश को खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। आज के इस गौरव के पल में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि कृपया डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर अपने हस्ताक्षर करने की कृपा करें। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मंच के पीछे की ओर है माननीय प्रधानमंत्री जी। मंच पर विराजमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रियों को आंध्र प्रदेश से जोरदार तालियों के बीच एन चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री माननीय श्री नारायण स्वामी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी और उप मुख्यमंत्री श्री डी डिसोजा जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जोरदार तालियों के बीच श्री मनोहर लाल खट्टर जी को हम बहुत बहुत सम्मान के साथ आप सभी का स्वागत। सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रहा है। देवी और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय थोड़ा सा जगह दीजिए, आप कैमरा वाले थोड़ा सा पीछे हो जाए। माननीय मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है थोड़ा सा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी को बताना चाहूंगी कि सम्मेलन कक्ष के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा साइन किया गया बोर्ड भी सम्मिलित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। 2 अक्टूबर 2019 को हम सब परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरम्य भारत श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करेंगे। इस महाअभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पाकर हम सब धन्य हुए हैं। देवी और सज्जनों, हर ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे स्वप्न दृष्टा की सोच होती है। कुछ ऐसे ही इतिहास पुरुष होते हैं जो सर्व कल्याण की सोच को साकार करने की ओर स्वयं पहल करते हुए पूरे राष्ट्र और समाज के सामने उदाहरण बन जाते हैं। स्वच्छता व्यवहार को राष्ट्र की संस्कृति बना देने के सपने के साथ स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों की ओर चल रही देश की इस सतत महायात्रा का नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी आज सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित हैं और इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर अभी उन्होंने हस्ताक्षर किया है। हमारे बीच विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्रीगण और उप मुख्यमंत्रीगण अपने कर कमलों से अभी इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये अद्भुत विलक्षण क्षण है जो भारत सरकार के सबका साथ सबका विकास स्वप्न को आगे बढ़ाता है। देवी और सज्जनों, स्वच्छता के महाअभियान में सभी भागीदार समन्वित रूप से स्वच्छ भारत के सपने को मूर्त करने का आज सामूहिक संकल्प लें। ये अद्भुत क्षण है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक देवी और सज्जनों देश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने का लक्ष्य प्राथमिकता से रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित सम्मेलन इंडोसैन 2000